مصر میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق عالمی کانفرنس، وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ 100 سے زیادہ ملکوں کے سربراہان حکومت و مملکت شریک۔ سمٹ کا مقصد عالمی درجہ حرارت میں کمی اور گرین انرجی کو یقینی بنانا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہونے والے ممالک کی مالی امداد کے لیے فنڈز کی فراہمی بھی زیر غور۔ موسمیاتی تبدیلی اقوام عالم کے لیے بڑا چیلنج، ترجیحی اور فوری عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ اہم پلیٹ فارم پاکستان کا موقف عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا باعث بنے گا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتیرس کا COP27 کے افتتاحی سیشن سے خطاب۔ شرم الشیخ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ UAE، تاجکستان اور عراق کے صدور، لبنان کے وزیر اعظم اور دوسرے رہنماؤں سے الگ الگ ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور موسمیاتی چیلنجز پر قابو پانے سے متعلق کاوشوں پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور یورپی یونین کا ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے یورپی یونین کے صدر چارلس مائیکل اور کمشنر کی ملاقات۔ ترقی پذیر ملک آج جن اثرات کا مقابلہ کر رہے ہیں، تمام دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی بھی ملاقات۔ عمران خان ملک میں فتنہ، فساد اور انارکی پھیلانا چاہتا ہے۔ صوبائی حکومت نے مٹھی بھر لوگوں کو احتجاج پر لگایا ہوا ہے۔ عمران خان کا غیر جانبدار میڈیکل بورڈ سے چیک اپ کرایا جائے۔ مقدمے میں مجھے نامزد کرنے کا شوق پورا کر لیں، شامل تفتیش ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ۔ سپریم کورٹ کا عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کی قانون کے مطابق FIR درج کرنے کا حکم۔ پولیس کے ہر قانونی اقدام کو عدالتی حمایت حاصل ہوگی۔ کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ قانون کی بنیاد پر پولیس کے موقف پر کسی سیاسی نقطہ نظر کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ اسلام آباد کے داخلی راستوں اور راولپنڈی میں PTI کا پرتشدد احتجاج۔ اہم شاہراہیں بند، جڑواں شہروں کے باسیوں اور طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، ایمبولینسز کو بھی راستہ نہیں دیا گیا۔ مودی حکومت کی سری نگر میں سید علی گیلانی کی رہائش گاہ ضبط کرنے کی سازش۔ بدنام زمانہ ریاستی تحقیقاتی ادارے نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بانڈی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، متعدد بے گناہ نوجوان گرفتار۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت بالائی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری، سرد ہواؤں کا راج۔ محکمہ موسمیات کی گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں چند مقامات پر مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ Free hit, bang, gone, decisive. And maybe they can. اور T20 ورلڈ کپ پہلا سیمی فائنل بدھ کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم سڈنی پہنچ گئی۔ اب تک 28 T20 میچز میں سے 17 گرین شرٹس جبکہ 11 کیویز نے جیتے۔ دوسرا سیمی فائنل جمعرات کو ایڈیلیڈ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ہوگا۔ میگا ایونٹ PTV اسپورٹس HD پر براہ راست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے بڑھتے ہوئے موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ انسانیت کی بقا کے لیے ماحولیاتی چیلنجز پر بھرپور رد عمل دیں یا اجتماعی خودکشی کا راستہ اختیار کر لیں۔ شرم الشیخ میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں پیرس معاہدے پر عمل درآمد اور ماحول کو درپیش چیلنجز سے نمٹنا اہم ایجنڈا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ COP اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے تحت فیصلہ سازی کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کا جائزہ لینے اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے سالانہ بنیادوں پر اجلاس منعقد کرتا ہے۔ شرم الشیخ میں ہونے والی کانفرنس COP27 میں 100 سے زائد ملکوں کے سربراہان حکومت اور مملکت شریک ہیں۔
कुराए अर्ज को मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से महफूज बनाना कॉन्फ्रेंस का अहम फोकस है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ COP27 सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इजलास की इफ्तिताही तकरीब में तमाम सरबराहान मुमलिकत का ग्रुप फोटो लिया गया। क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की सूरत में अक़वाम आलम को एक बड़े चैलेंज का सामना है, जिससे निमटने के लिए हमें तरजीही और फौरी अमली इक़दामात करना होंगे। This UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. It is a defining issue of our age. It is the central challenge of our century. It is unacceptable, outrageous, and self-defeating to put it on the back burner. Indeed, many of today's conflicts are linked with growing climate chaos. कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। We have a credibility problem, but we also have the ability to address it. And if anyone doubts that we can summon the political will to do what is necessary and to save our future, always remember that political will is itself a renewable resource. समिट के इफ्तिताही सेशन में मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस और इनसे पैदा होने वाले मसाइल पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। Atmospheric levels of greenhouse gases reach new record highs every year. Atmospheric concentration of CO2 has risen to 416 parts per million today. पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुमालिक में शामिल है, जबकि आलमी कार्बन इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। रमासाल पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया, वहीं ये कुदरती आफत पाकिस्तान में गजाई इजनास की पैदावार में कमी और वबाई अमराज के फैलाव के इजाफे का बाइस भी बनी। COP27 सरबराह इजलास का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के मौकिफ को उजागर करने में अहम साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के चैलेंज से निमटने और सरसब्ज़ और शादाब पाकिस्तान के लिए आलमी बरादरी का भरपूर ताउन ज़रूरी है। जनरल असम्बली में पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती की करारदाद की रोशनी में आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर गौर कर रहे हैं, जिसमें तमाम तरक्याती शराकतदार शरीक होंगे। शर्म उल शेख में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और भरपूर आलमी इमदाद की अपील पर UN चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गैर मामूली सैलाबी माहौलियाती तब्दीली के वाज़ेह चैलेंज का मजहर है। माहौलियाती इंसाफ और माहौलियाती यकजहती से मुतालिक सेक्रेटरी जनरल की अपील की तौसीक करते हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि सैलाब से $32 अरब का नुकसान हुआ है, जो मजमूई मुल्की पैदावार का 10% है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के नायब सेक्रेटरी जनरल की क़यादत में बहाली और तामीर नौ के जामे प्लान बनाने के इक़दाम को सराहा। यह प्लान कॉन्फ्रेंस में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सरबराह कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को बरवक्त इदाम करार देते हुए कहा कि इससे आलमी बिरादरी को माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने और माहौलियाती इंसाफ के तकाजे पूरे करने की कोशिशों में मदद मिलेगी। COP27 कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात और मौसमियाती चैलेंजेस पर काबू पाने से मुतालिक काविशों पर तबादला ख्याल हुआ। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मिस्र के शहर शर्म उल शेख में होने वाले क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट के मौके पर सरबराहान मुमलिकत से होने वाली मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से मुतल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने COP27 कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद के लिए आलमी बरादरी बिलखसूस इस्लामी दुनिया के अज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने के लिए COP27 के अज़म को नेक शगुन करार देते हुए जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटना तन्हा तरक्की पजीर मुल्कों के बस में नहीं, आलमी बरादरी को मिलकर कुराए अर्ज की बका का मुश्तरका चार्टर बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन की फराखदिलाना इमदाद पर UAE की क़ियादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इंडोनेशिया के नायब सदर मारूफ अमीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुर्दनी तेल के जहाजों की फौरी तरसील
پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انڈونیشیا کے نائب صدر نے کہا کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، ہر ممکن مدد پر خوشی ہوگی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر انڈونیشیا کی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بات چیت کرتے ہوئے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے کہا کہ وہ رواں سال دسمبر میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ملاقات میں موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاجک صدر نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں اور جانی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، اجتماعی کوششیں لازم ہیں۔ کوپ 27 سربراہی کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عراق کے صدر عبداللطیف راشد اور لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور کمشنر یورپی یونین ارسلا وون ڈر لیین کے درمیان ملاقات میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے متحدہ کوششوں سے حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی اتحاد ضروری ہے۔ ترقی پذیر ممالک آج جن اثرات کا مقابلہ کر رہے ہیں، کل تمام دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے یورپی یونین کے ملکوں کی پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے جذبے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے مشترکہ مقاصد کے حصول میں شراکت دار ہیں۔ وزیر اعظم نے فاٹف کے گرے لسٹ سے پاکستان کا نام نکلنے میں یورپی ملکوں کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین اور پاکستان میں دو طرفہ تجارت بڑھانے کی بہت گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹالینا جورجیوا کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام پورا کریں گے، آئی ایم ایف کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی فوری مدد اور بحالی کے لیے بجٹ تخمینوں میں تبدیلی لائے ہیں۔ کورونا عالمی کساد بازاری کے بعد سیلاب کی صورتحال کے پاکستان کے معاشی بحالی کی رفتار پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کی جان بچانا اور متاثرین سیلاب کی بحالی پہلی ترجیح ہے۔ امید ہے کہ کوپ 27 کانفرنس موسمیاتی انصاف دلانے میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ شرم الشیخ میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور یورپی یونین کے صدر چارلس مائیکل کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں ماحول سے متعلق چیلنجز پر قابو پانے کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ یورپی یونین کے صدر نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے یورپی یونین کے احساس اور امداد کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات تمام ممالک کے اتحاد کے متقاضی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی طرح موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف عالمی اتحاد درکار ہے۔ ناظرین، کاربن گیسز کے بڑھتے اخراج کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں اضافہ دنیا کو درپیش اہم مسئلہ ہے۔ مصر میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں مشترکہ اقدامات کے ساتھ موسمیاتی تباہی کے شکار ملکوں کو مالی تعاون کی فراہمی بھی زیر غور ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر۔ مصر میں کوپ 27 جاری ہے۔ دنیا بھر کے 40,000 سے زائد افراد اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کوپ 27 کا ایک مقصد پیرس معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنانا ہے۔ پیرس معاہدے میں طے کیا گیا تھا کہ دنیا بھر کے درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 سے 2 ڈگری سیلسیس تک محدود رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ مصر موسمیاتی خطرے سے دوچار ممالک کے لیے مالی معاونت کو سب سے اہم سمجھتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والے نقصان کا ازالہ چاہتے ہیں، لیکن ترقی یافتہ ممالک تمام تر کاربن کے اخراج کے باوجود اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ گزشتہ سال کے سمٹ میں امریکہ اور یورپی یونین نے موسمیاتی تبدیلی کے ازالے کے لیے قیمت کی ادائیگی کی فنڈنگ سے انکار کر دیا تھا۔ 2022 میں موسمیاتی تبدیلی کی تباہ کاریوں میں سب سے بڑا شکار پاکستان ہوا ہے۔ تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ کپاس، گنا، گندم اور چاول کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پاکستان کے تقریباً 3 صوبوں کے متاثرہ افراد کی 70 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت امداد کی گئی ہے، جبکہ پاکستان نے اقوام متحدہ سے بھی امداد کی اپیل کی تھی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے فلیش اپیل میں 81 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی اپیل کی گئی تھی، جو کہ شدید متاثرہ پاکستان کے لیے بہت کم ہے۔ بین الاقوامی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ اگر ہنگامی بنیادوں پر موسمیاتی تبدیلی کے خلاف کام نہ کیا گیا تو دنیا بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں اگر عالمی درجہ حرارت کو 2 یا 2.5% کم کر لیا جائے تو انسانی زندگی پر اس کا بہت مفید اثر ہوگا۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور معاشی استحکام اور ترقی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مالیاتی اور مانیٹری پالیسی کے ذریعے اقتصادی بحالی میں اسٹیٹ بینک کا ریگولیٹری کا
किरदार काबिल तारीफ है। गवर्नर ने पायदार तरक्की के हसूल के लिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से वजीर खजाना को ब्रीफ किया। वजीर खजाना इसहाक डार की सदारत में नेशनल टैक्स काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वजीर खजाना ने कहा कि आसान कारोबार के लिए जीएसटी में हम आहंगी वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि आलमी बैंक के राइज प्रोग्राम की तकमील के लिए जीएसटी पर तमाम शराकतदारों में इत्तेफाक राय इंतहाई अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब पुलिस को वजीराबाद में इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े की कानून के मुताबिक 24 घंटे में FIR दर्ज के इंदराज का हुक्म दिया है। 5 टुकड़ी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बिंदाल ने कहा कि मुकर्ररा वक्त में FIR दर्ज न होने की सूरत में अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जिसमें आईजी पंजाब पुलिस को भी फ्रीक बनाया जाएगा। आईजी पंजाब को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 दिन से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद वाक़े की FIR नहीं हो सकी। FIR दर्ज न होने का मतलब है कि तहकीकात नहीं हो सकेंगी और तहकीकात न होने से शवाहिद में रद्दबदल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के मुताबिक किए गए पुलिस के हर इकदाम को अदालती हिमायत हासिल होगी। फौजदारी निज़ाम अदल अदालत का इस्तेहकाक है, इसमें किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि मामले पर एक नुक्ता नज़र सियासी और दूसरा पुलिस का है। फायरिंग वाक़े के बाद वज़ीर आला से बात हुई थी। पंजाब हुकूमत को मुकदमे के इंदराज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि कानून की बुनियाद पर पुलिस के नुक्ता नज़र पर किसी सियासी नुक्ता नज़र को फ़ौक़ियत नहीं दी जा सकती। अदालत ने पुलिस से इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने वज़ारत दाखिला की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर इमरान खान के वकील की तफसीली जवाब जमा कराने की इस्तदा मंजूर करते हुए उन्हें आइंदा हफ्ते तक की मोहलत दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान मुकदमे में मुझे नामजद करने का शौक पूरा कर ले, शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूँ। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान का गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड से चेकअप करवाया जाए। अगर 4 गोलियां लगने की बात सच साबित हो जाए तो सियासत को खैराबाद कह दूंगा। बसूरत दीगर इमरान खान सियासत छोड़ दें। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान नियाज़ी की तरफ से इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल करना मुल्क के लिए तबाहकुन है। वही मुलज़म है और उसने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से उसने जो है वो इसके ऊपर हमला किया। पुलिस जो है वो बाकायदा उनकी हिफाजत करके उसे रास्ते बंद करवा रही है और लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो सड़कों पे रुला रही है, मरीजों को रुला रही है, लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रही है। तो ये दोनों सूबाई हुकूमतें कर रही है। वज़ारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीराबाद वाक़े के FIR के इंदराज में ताख़ीर पर हैरत का इजहार करते हुए इस मुकदमे को कमज़ोर और शवाहिद ज़ाया करने के मुतरादिफ करार दिया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से भेजे गए मरासले में हाई प्रोफाइल केस को गलत तरीके से डील करने पर वफाकी हुकूमत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं शाहरुख शफी से उनकी इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने वजारत दाखिला के जरिए पंजाब हुकूमत पर जोर दिया है कि इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले की FIR जल्द अज जल्द दर्ज की जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखे गए खत में कहा गया है कि अमूमी हालात में वाक़े के 24 घंटे के अंदर ही पर्चा काट दिया जाता है। वज़ीराबाद में होने वाले वाक़यात के तनाज़र में CRPC 1898 की शिक नंबर 154 के तहत SHO और CTD पंजाब की मुद्दयत में हक़ाइक़ और मेरिट की बुनियाद पर FIR दर्ज की जाए, न कि क़यास आराइयों की बुनियाद पर। इस मामले में मजीद वक्त ज़ाया न किया जाए क्योंकि इस मामले में ताख़ीर गैर कानूनी है। इससे मुल्ज़िम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के मामले में पहले ही नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने इस बात की निशानदेही भी की कि सूबाई हुकूमत न सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रही, बल्कि एहतिजाजी कारवां के हवाले से SOPs पर अमल करने के मामले में भी वाज़ेह कोताही नजर आई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखे गए खत में वज़ारत दाखिला ने सूबाई हुकूमत को हाई प्रोफाइल केस से निपटने के मामले में अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। खत में मजीद लिखा गया कि वाक़े के बाद सूबाई हुकूमत ने वाक़े या साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने और कारवां के मुतालिक SOPs पर अमल न किए जाने के हवाले से किसी तरह की वजाहत पेश करने में भी हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया है। वफाकी हुकूमत इस बात को भी देख रही है कि ताहाल साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मेडिको लीगल भी नहीं हुआ। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि सूबाई हुकूमत जुर्म में इस्तेमाल होने वाले असलहे के हवाले से भी कोई मालूमात फराहम नहीं कर सकी और ये भी नहीं बताया गया कि इस असलहे का फोरेंसिक जायजा लिया गया है कि नहीं।
सवालात में ये भी पूछा गया कि कई घंटों तक जाए वकूअ को महफूज नहीं किया जा सका, जो तयशुदा ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। इस वाक़े के मुतासरीन के जख्मों की नौइयत के हवाले से भी कोई मालूमात जारी नहीं की गई। ये भी अयां हुआ है कि मुबैना हमला आवर के एतराफ़ जुर्म की वीडियोस जारी होने के मामले में भी तहकीकात के अमल में किस कदर खामियां हैं। सूबाई हुकूमत और इसके इदारों की मज़कूरा बाला खामियां मामले से निपटने में नाअहली को वाज़े करती हैं, जो कि मुजरमाना गफलत है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक वाक़े के बाद सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से भी मौसर अंदाज में नहीं निपटा गया, जिसकी वजह से आम आवाम के लिए मसाइल पैदा हुए। शरपसंदों के छोटे ग्रोहों की जानिब से मरकजी शाहराहों और सड़कों की बंदिश से पंजाब के कई शहरों में कारोबारी जिंदगी ठप हो गया, जिससे सूबाई नकलो हरकत भी बंद हो गई। सूबाई पुलिस और इंतजामिया की नाअहली की वजह से नकलो हरकत की आज़ादी पर कदगन लगी, जिसकी जमानत आइन के आर्टिकल 15 में दी गई है। शरपसंदों की जानिब से लाहौर में गवर्नर हाउस पर हमले से मजीद वाज़े हो जाता है कि सूबाई हुकूमत इस सूरत हाल से निपटने में गफलत की मुर्तकिब हुई और सूबे की आला तीन इक़्तिदार के हामिल दफ्तर और रिहाइशगाह के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम दिखाई दी। मज़कूरा वाला बातों की रोशनी में ये ज़रूरी है कि सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर मुस्तैदी दिखाते हुए सूबे में तमाम शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए इक़दामात को यकीनी बनाए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के एहतजाज की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रुकावटें डालने की वजह से मरी रोड, पिशावर रोड, IJP रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने कई इलाकों में एम्बुलेंसेज को भी रास्ता नहीं दिया। एहतजाज के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया ने तहसील रावलपिंडी में 2 दिन के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस ट्रैफिक की बहाली के लिए मसरूफ़ अमल रही। रेंजर्स और FC के जवान गश्त पर मामूर हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रावलपिंडी इंतजामिया से अपील किया है कि बैनुल अज़लाई रास्तों को खोला जाए। शहरियों से भी कहा गया है कि किसी भी मशकूक सरगर्मी के मुतालिक फौरी पुकार 15 पर इत्तला करें। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि इमरान खान ने मुतनाज़ा बयानात के जरिए खुद पर फायरिंग के वाक़े को मुतनाज़ा बना दिया है। इस मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार के लिए पूरे निज़ाम को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने पर तुले हुए हैं। उनके लॉन्ग मार्च का वाहिद मकसद अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस की भी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। रिकॉर्ड माहिदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस में माली नहीं कानूनी मामलात का जायजा ले रहे हैं। 5 शुक्री बेंच के रूबरू एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौके इख्तियार किया कि रेकॉर्डिंग से निकलने वाली मादरियात बेहतरीन पेशकश देने वाली कंपनी से रिफाइन होंगी। रेकॉर्डिंग माहिदे से 40 साल में कुल मिलने वाला मुनाफा $32 अरब होगा। दौरान समाअत बैनुल अक़वामी माहिरीन ने अदालत को बताया कि माहिदे पर इस वक्त $8 की सरमायाकारी की जरूरत है। फायदे के लिए पाकिस्तान को $4 अरब की सरमायाकारी करनी होगी। माहिदे का पहला फेज 5 साल का होगा। सरकारी शोबे में बैरक गोल्ड के अलावा किसी कंपनी से इतना बेहतरीन मुआहदा नहीं हो सकता। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सदारत में ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक, आलमी दायरा सेहत और माहिरीन ने शिरकत की। सदर मुमलिकत ने दिमागी और नफ्सियाती सेहत पर सरकारी और निजी स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी के क़याम की हिदायत की और कहा कि नए तसव्वुरात पर गौर करते हुए बेहतरीन मयार को मिसाल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दिमागी सेहत के मसाइल का सामना करने वाले अफराद को मुशावरत और खिदमात फराहम करने के लिए जामे मनसूबा तैयार करने की ज़रूरत है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अंदाजे के मुताबिक 80% लोग दिमागी सेहत की जरूरियात से महरूम हैं। माहिरीन नफ्सियात और काउंसलर्स की तादाद को तरजीही बुनियादों पर बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों में लोगों तक जहनी सेहत की खिदमात की पहुंच को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। जहनी सेहत की हेल्पलाइन कायम करते हुए खिदमात के एतमाद, राजदारी और एतबार के अनासिर को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। नाज़रीन, फस्ताई भारतीय हुकूमत कायदे हुर्रियत शहीद सैयद अली गिलानी की यादें मिटाने के लिए श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में उनकी रिहाइशगाह पर कब्जा करने की साजिश कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने बदनाम ज़माना रियासती तहकीकाती इदारे SIA को सैयद अली गिलानी की रिहाइशगाह जब्त करने की जिम्मेदारी सौंपी है, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत पसंद कश्मीरी आवाम के लिए मशअल राह है। इस रिहाइशगाह में कायदे हुर्रियत सैयद अली गिलानी की पूरी जिंदगी के दौरान भारत के खिलाफ मुजाहिमत में एक मरकजी मुकाम
انجام حاصل رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق سعید علی گیلانی کی رہائش کا ضبط کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ خدشہ ہے کہ اس سلسلے میں احکامات کسی بھی وقت جاری کیے جا سکتے ہیں۔ بھارتی پولیس نے ضلع بانڈی پورہ میں محاصرہ تلاشی کی کارروائی کے دوران 2 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کے بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھی مودی کو فرقہ پرست حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے کی ثقافتی، سماجی اور سیاسی تشخص کو لاحق خطرے کے پیش نظر آئندہ اسمبلی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ Secretary General Antonio Guterres, Foreign Minister Bilawal Bhutto, Ministers and ladies and gentlemen, thank you very much for your time and your commitment shown to the people of Pakistan, and your presence here in our pavilion is a manifestation of your great support and your concern for the people of Pakistan. Your visit to Pakistan will be remembered for all times to come, and your statements, your support and your message of sympathy was heartwarming. And today again, it is a great commitment shown by you despite your very busy schedule. And now today we are here, and you know better than me that we are poised on the threshold of a new Green Deal, or a trajectory to a 3-degree world where returning to the earth we know today will be impossible. You also know that some countries, namely Pakistan, will be more exposed, more deeply vulnerable than others living in cooler longitudes. For the lost and the damaged of the world, such gatherings are the only hope. In my country, Secretary General, millions of people are going into winter without the shelter or livelihood. That is their fundamental right. Women and children are still looking to us to protect their basic needs, while entire villages are seeking to secure a precarious future, with all of us such recovery hinging on a flow of resources that we are unable to guarantee. Huge lakes of stagnant water have transformed the landscape of the south, where crops would have fed millions and livestock would have saved families from destitution. We are picking up the pieces as we speak, but hundreds of bridges still lie broken, like the 8,000 plus kilometers of metal road ripped out like toothpick from the fury of the raging torrents. And you said, and very rightly so, monsoon on steroids. The health crisis that threatens the south with its waterborne diseases from new lakes that don't drain, and the water is still stagnating all over. We are grateful to the UN agencies, WHO and other development partners in supporting us through this unprecedented challenge. But this climate carnage is so much more than an exogenous shock to the entire body of our social and economic fabric. The latest estimates have calculated loss and damage at $30 billion. Our journey to recovery will be held back by increasing public debt, rising international energy prices, and no real access to adaptation funds. Our social security platform, the Benazir Income Support Program, has allocated urgent cash transfers worth $316 million to the most vulnerable 2.8 million families, providing $113 to each affected family. We have mobilized every available resource
towards the national relief effort and repurposed all budget priorities, including resilience and development funds, to the rescue and first order needs of millions. But the gap is much bigger and it must be filled sooner rather than later. And we truly appreciate the flash appeals and the efforts you and your team have made. But as you know, Secretary General, there is still a long way to go in sheltering and feeding millions of people. At the broader level, we seek to add loss and damage to the climate agenda, and we hope that all countries come to the COP27 meetings in the spirit you so ably championed as climate justice for all. My goal in the end is the same as yours, Excellency, to not let helplessness become a death sentence in this race against time. Let us plan on working towards that ambition. Goes on in Pakistan will not stay in Pakistan. So let's stand up and say no to this before it's too late. Thank you, Secretary General. Thank you very much. Dear Prime Minister Sharif, Excellencies, ladies and gentlemen, there are moments in our life that are unforgettable and that mark you deeply. My last visit to Pakistan was one of these moments. To see an area flooded that is 3 times the size of my country, Portugal. To see the loss of life, the loss of crops, the loss of livelihoods. To see the dramatic impact in the lives of people all over the country. And at the same time, to see the courage, the resilience, and the generosity of the Pakistani people. I knew that generosity when I was High Commissioner for Refugees, looking at the way Pakistanis have shared everything to receive millions and millions of Afghan refugees. But this time I could witness that generosity with a testimony that I will never forget, of women and men that have decided to leave their property, to leave their assets, to go and rescue other people, other people's lives in the neighborhood, instead of protecting their own assets, their own property. Now, these examples of generosity are examples that should be imitated by the international community. The international community has a duty to massively support Pakistan in this moment. And there are different ways to do it. One, the UN is proud to be associated with the government of Pakistan for the International Donor Conference, in which we will try to obtain from the international community to the government of Pakistan the kind of massive support that is needed for the rehabilitation, the reconstruction of the areas impacted by these tragic events. But more needs to be done. The Prime Minister has said, if there is any doubt about loss and damage, go to Pakistan. There is loss and there is damage. And this COP needs to recognize it and needs to define a roadmap, a clear roadmap to deal with it, and including the creation of an institutional framework, including financing, in order to address the problems of loss and damage. And I hope that Pakistan will be able to benefit from these developments. But then Pakistan is also a victim of being a middle-income country. And because it is a middle-income country, Pakistan has not benefited from debt relief at the level that should be necessary for the country. And one of the proposals that I've been making is, for countries like Pakistan, there should be a way to have a swap, exchanging the payment of the debt
to investments in the rehabilitation and the recovery and reconstruction from a natural disaster like the one that has occurred. So my appeal to the international financial institutions and to the G20 that will be meeting soon in Bali is to create the conditions for mechanisms of debt relief of middle-income countries impacted by natural disasters the size of the one Pakistan had, in order to allow resources to be devoted to the investments in resilience and in recovery and reconstruction that are necessary. And then it is, again, Pakistan is victim from the fact that being a middle-income country, Pakistan has no access to concessional funding. There is no reason why middle-income countries that are dramatically impacted by climate change have no reason for them not to have access to concessional funding. And I believe that in the context of the Bretton Woods system, this is something that needs to be reviewed, and I hope the G20 will also be able, in this regard, to promote the necessary reforms, because it depends on decisions of the boards, and those countries that will gather in the G20 have the majority of the boards of the IMF and the World Bank, and also in relation to many other regional international development banks and other financial institutions. So let's be clear. Pakistan deserves massive support directly from the international community. Pakistan deserves loss and damage to be considered as a reality and to be followed, that recognition, by the financial mechanisms that I hope this conference will be able to decide. And finally, it is important to review the way the international financial system works in order for Pakistan to have access to effective debt relief and to have access to the concessional funding that is necessary for the levels of reconstruction and rehabilitation that are huge, taking into account the devastating impact of the floods. And the UN will be side by side with Pakistan. And I want to once again express our total solidarity with the people, the government of Pakistan, and a strong appeal for the international community to be able to correspond to the generosity that Pakistanis have always shown. Thank you very much. पाकिस्तान डिजर्व्स मैसिव सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, ऐसा कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का, जो कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इससे कबल वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल की जो पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसको उजागर करने, आलमी बिरादरी को मुतहर्रिक करने, अपील करने, पाकिस्तान में उनके दौरे को सराहा और एंटोनियो गुतेरेस का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दीगर ममालिक के निस्बत माहौलियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को बेहद मुतासिर किया है। जानी और माली भारी नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर फसलें, सड़कें, मकानात तबाह हुए हैं। अब तक का जो तखमीना है $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मिस्र के शहर शर्म अल शेख में। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको आगाह करें कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून सरदार याद सादिक ने सिंध के अवाम को यकीन दिलाने का है कि मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी की निकासी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाम वसाइल पुरकार लाएंगी। उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत ने अब तक मुतासरीन में 70 अरब रुपए तकसीम किए हैं। सैलाबी पानी की मौजूदगी से मुतासरीन की मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। इजलास में करारदाद की भी मंजूरी दी गई, जिसमें साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ सियासी इंतकाम पर बनाए गए मुकदमे की मजम्मत और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। वजीर मवासलात असद महमूद ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 4.5 साल तक बरसर इक़्तिदार रहने वाले इमरान खान ने मुल्क को माशी, खारजी और सियासी लिहाज से बहुत कमजोर किया। मौजूदा हुकूमत मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशा है। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तलबा की ट्रांसपोर्ट फीस से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब देते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने इस मामले का फौरी नोटिस लेते हुए ये फीस खत्म कर दी है। वजारत तालीम स्कूलों और कॉलेजेस की बसेस चलाने के लिए 10 करोड़ रुपए फंड जारी करेगी। कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात शाम 5 बजे तक मुलतवी हो गया है।
नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक से आलमी बैंक के जनूबी एशिया रीजन के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और समाजी और मौशी तरक्की के लिए ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए मुआवनत और सैलाब मुतासरीन की इमदाद की फरहमी पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड बैंक इस वक्त $13 अरब के 54 मनसूबों पर काम कर रहा है। आलमी बैंक पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए $3 अरब की सरमायाकारी में मदद देगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान से वर्ल्ड बैंक के रीजनल डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने दासो हाइड्रो पावर मनसूबे और कासा 1 के हवाले से ब्रीफिंग दी। रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि सूबों समेत के इलेक्ट्रिक को भी शमसी तवानाई के शोबे में मुआवनत फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर ने वफ़द को तवानाई के शोबे में दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। नाज़रीन, फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन में कम वोल्टेज के मसले के हल और तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए मुतादिद मनसूबों पर काम जारी है। फेस्को की जानिब से $9 अरब के नए मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। हुकूमत ने फेस्को में इनकलाबी मंसूबों का आगाज कर दिया। फेस्को रीजन में 9 अरब रुपए से जायद लागत से बरकी तरक्याती काम, जिनमें 11 नए ग्रेड स्टेशन, 529 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनें, 47 नए फीडर और 700 LT मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। ग्रेड 17 की 86 असामियों पर भर्ती का अमल आइंदा 60 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि 4700 से जायद खाली असामियों पर भर्ती का अमल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। रीजन भर के मुख्तलिफ अजला में सार्फिन की बिजली की बढ़ती ज़रूरियात और सनती, ज़रई और कारोबारी तरक्की के लिए अलाइड मोड़, गोकुवाल, कोट मोमिन, भाबड़ा, कलूरकोट, हैदराबाद, थल, मनकेरा, छदरो, सराय महाजिर, कट्ठा, संगराल और झक्कड़ ग्रिड स्टेशन तामीर किए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर प्रोग्राम के तहत सिस्टम में 513 नए तकसीमी ट्रांसफार्मर्स का इजाफा किया जाएगा और 11 KV कैपेसिटर्स के 1800 यूनिट्स लगाए जाएंगे, जो फेस्को के लासिस में खातिर खा कमी का बायस बनेंगे। हमारा मौजूदा सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए इस साल का जो हमने प्लान बनाया है उसमें हम 9 अरब रुपया जो है वो खर्च कर रहे हैं। और ये हमने प्लान बनाया है, ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं एज़ ज़िम्मेदार चेयरमैन फेस्को आपके साथ कमिट कर रहा हूँ कि ये हमने कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑटोमेटेड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पहले फेज में 16,066 ज़रई और सनती सार्फिन को ऑटोमेटेड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर तब्दील किया जाएगा, जिसका दायरा कार तमाम सनती और ज़रई सार्फिन तक फैला दिया जाएगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकी हुकूमत की मजबूत पॉलिसीज के इस्तेमाल कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 191 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,047 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 24 करोड़ 2,19,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 5 अरब 44 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा थी। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मजीद 26 पैसे कमी हुई है, जिसके बाद इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 221 रुपए 66 पैसे पर आ गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 225 रुपए 5 पैसे और कीमत फरोख 227 रुपए 75 पैसे पर आ गई है। पाकिस्तान में आलमी इदारे सेहत की नुमाइंदा डॉक्टर पालीथा माहीपाला ने सैलाब से मुतासर इलाके जिला कोहिस्तान का दौरा किया और जिला हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर में फ्लड रिस्पांस के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह किया और सेहत सहूलियात का जायजा लिया। वफ्द को सैलाब की तबाहकारियों और सेहत की हंगामी सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर अद्वियात और दीगर तिब्बी सामान महकमा सेहत के हवाले किया। डॉक्टर पालीथा माहीपारा ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मुनिल्ला ने कहा है कि आइन की अमलदारी उसी वक्त हो सकती है जब माइंड सेट तब्दील हो। सियासी लीडरशिप आइन की अमलदारी को मजबूत कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने एजाज में होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में चीफ जस्टिस अतर मुनिल्ला ने कहा कि हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है। सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो अपने मामलात अदालतों में ना लाएं और पार्लियामेंट को मजबूत करें। विफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इमरान खान भारतीय मीडिया की पसंदीदा तरीन शख्सियत बन चुका है। इंडियन मीडिया का कहना है कि जो काम भारत और इसके खुफिया इदारे 75 साल में नहीं कर सके वो अकेले इमरान खान ने चंद माह में कर दिया। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि इमरान खान को आईनी तरीके से इक़्तिदार से निकाला, अब इसकी चीखो पुकार बेबुनियाद है। वो लॉन्ग मार्च के नाम पर ड्रामा कर रहा है।
कराची में पहले जदीद तरीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया है। तफसील बता रही हैं नौरीन आसिफ। IT पार्क के मंसूबे के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक ने कहा कि लोगों के दरमियान जदीद रवाबित का कयाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस ज़मीन में अब तक खती रकम खर्च कर चुके हैं। इसमें एडवांटेज क्या, लगभग 225 के करीब स्टार्टअप और SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो कंपनी, उनको इस पर जगह फराहम की जाएगी ताकि वो अपने कारोबार को, अपने काम को आगे की तरफ ले सके। 3 इसके मकसद हासिल किया जाएगा। नंबर 1 कि नॉलेज बेस्ड इकनॉमी को बूस्टअप करना, नंबर 2 स्टार्टअप और SME को फैसिलिटेट करना, और नंबर 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना। जब मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मुल्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, 3D, गेमिंग, एनिमेशन, अब तो मेटावर्स, ये तमाम चीज़ आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमें हर सूरत में अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को इस चीज़ों से रोशनास कराना है। तकरीब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर और रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने खिताब करते हुए कहा कि ये IT पार्क जदीद दौर का तकाजा और वक्त की अहम जरूरत है। कराची की तरक्की से मुल्क की खुशहाली मुंसलिक है। तकरीब से खिताब करते हुए कराची में कोरिया के कौंसल जनरल किम हैक्संग ने कहा कि पाकिस्तान में IT सेक्टर की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन और सपोर्ट कर रहे हैं। बाद में वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक ने मंसूबे का बाकायदा संग बुनियाद रखा। कराची के इस पहले IT पार्क पर 42 अरब रुपए की लागत आएगी। IT पार्क 6 एकड़ अराजी पर मुहित होगा। इस मंसूबे को जून 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से एक शख्स मुल्क में इंतशार चाहता है। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि इमरान खान झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। वो इक़्तिदार की हवस में मुल्क को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। इस मुल्क को किस तरह इंतशार पिलाया जाए, अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाए, अपने तमाम इदारों को तबाह कर दिया जाए, तो मुझे ये इससे अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि इससे उसको हासिल क्या हो। वही लोग जो आज नारे लगा रहे हैं, बाहर उनको गुमराह करने के पीछे इमरान खान लगा हुआ है और गुमराह कर रहा है और झूठ पे झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ। मुआवनी खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान इंतशार चाहते हैं ताकि निज़ाम हुकूमत न चल सके। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने कहा कि वजीराबाद वाक़े का आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। पंजाब में सिक्योरिटी जिनकी जिम्मेदारी थी, मुकदमात भी उनके खिलाफ दर्ज होने चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने तमाम मकातिब फ़िक्र पर जोर दिया है कि वो रवादारी और बाहमी एहतराम को मद्देनजर रखते हुए मुल्क में अमन अमान के क़याम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए अपना किरदार अदा करें। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया। शहरी नूर रहमान कुची ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरान खान को कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में मुझसे मंसूब बेबुनियाद थ्रेट अलर्ट जारी किया। मुझे उठाया गया और तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम लिया। मैं 40 साल से पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मेरा अफगानिस्तान में कारोबार है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और आज़ाद कमीशन के जरिए तहकीकात की जाए। नाज़रीन, सिंध हुकूमत सूबे के आवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए कोशां है। शहरियों को जदीद सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए अब इलेक्ट्रिक बसें कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की क़यादत में वफ़द ने कराची में मुलाकात की। इस मौके पर शहर में जारी तरक्याती मनसूबों और बारिशों से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ पर बातचीत की गई। इस मुलाकात में MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। उन्होंने कहा कि शहर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान के दरमियान कराची में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने सूबाई रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने मोहम्मद बलीगुर रहमान को सिंध में सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے WSSP پشاور کے حکام کو کوہاٹ اور یونیورسٹی روڈ سمیت دیگر مقامات پر بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے پیش کی انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے صوبائی دارالحکومت میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے پر زور دیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہاؤسنگ اور ورکس کا اجلاس چیئرمین سینیٹر ہدایت اللہ خان کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ ہونے والے اجلاس میں تما اور موریا گاؤں کی اراضی کی قیمتوں پر قبضے کے معاملے پر غور کیا گیا۔ کمیٹی نے قبائلی اضلاع محمد باجوڑ اور خیبر میں PWD کی جانب سے پائیدار ترقی کے اہداف کے پروگرام میں بے ضابطگیوں کے معاملے پر بھی غور کیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے عمران خان پر حملے اور سینیٹر اعظم سوادی کی مبینہ ویڈیو معاملے کی مذمت کی ہے۔ سینیٹر محسن عزیز کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ارکان نے کہا کہ ایسے واقعات سے حالات انارکی اور لاقانونیت کی طرف جائیں گے۔ کمیٹی سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی ذیلی کمیٹی کی رپورٹ پر بھی غور کیا گیا۔ ناظرین، شہر قائد میں ابر رحمت سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گی عائشہ آفرین۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش کے باعث شہر کا موسم سرد اور خوشگوار ہو گیا۔ کہیں بوندا باندی تو کہیں تیز پھوار ریکارڈ کی گئی، جبکہ محکمہ موسمیات نے آج اور کل ہلکی سے معتدل بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ابھی ہے امکان اور بھی کہ کہیں لائٹ رین ہو جائے، کہیں بوندا باندی ہو، کوئی اس کے ساتھ ساتھ ہلکا پھلکا تھنڈر اسٹارم بھی ہے کہیں آئسولیٹڈ جگہوں پر۔ محکمہ موسمیات نے اگلے مہینے سے کراچی میں سردی کی طاقتور لہر آنے کی پیش گوئی کی ہے۔ معمول سے کچھ زیادہ سردی کا جیسے فورکاسٹ ہم نے کی تھی نومبر، دسمبر اور جنوری کے 3 مہینوں کی ہوئی ہے ابھی، تو اس میں معمول سے کچھ کم ہے ٹیمپریچر، بالخصوص ساؤتھ میں۔ کراچی میں دن بھر موسم جزوی طور پر ابرآلود رہا اور بارش کے بعد شہر کے درجہ حرارت میں بھی کمی واقع ہوئی، جبکہ کراچی کے علاوہ ٹھٹہ میں تیز بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کراچی میں بارش اور ٹھنڈی ہواؤں نے موسم سرما کی آمد کی نوید سنا کر شہریوں کے مرجھائے چہروں کو خوشی سے کھلا دیا ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ کراچی کے بعد پورے پاکستان کا موسم کیسا رہے گا، یہ بتائیں گے قاسم علی۔ شکریہ رضوان۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وادی کاغان، وادی کونش اور وادی سرن کے پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ سیاحتی مقامات سری پائے، ناران، بٹا کنڈی سمیت ملحقہ علاقوں میں وقفے سے بارش اور برف باری جاری ہے۔ ناران میں اب تک 6 انچ سے زائد برف پڑ چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ تاہم اس دوران گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ ریکارڈ